वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यंग इंडिया पुलिस स्कूल के ब्रोशर और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। स्कूल की यूनिफॉर्म के नमूनों का जायजा लिया। पुलिस स्कूल को सिंध स्कूल्स की तर्ज पर कौमी मॉडल के तौर पर तरक्की दी जाएगी। हुक्काम को खेलों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पुलिस शुहदा के अहल खाना के बच्चों को दाखिले में तरजीह दी जाएगी। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम पेशरफ्त। तेलंगाना के वजीर जुबली कृष्णा राव ने आज ऐलान किया कि एक हफ्ते से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां टनल में फंसे 8 में से 4 अफराद का पता लगा लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रेडार की मदद से उन अफराद की लोकेशन मालूम की है। 4 मजदूरों को मुमकिना तौर पर कल रात तक बाहर निकाल लिया जाएगा, जबकि बाकी 4 को बचाने में एक और दिन लग सकता है। वजीर ने कहा कि टनल के अंदर हालात निहायत संगीन है, जिसकी वजह से हुकूमत को रेस्क्यू में ज्यादा वक्त लग रहा है। फौज, NDRF, SDRF, SCCL, फायर सर्विसेज, NGRI, SCR, प्लाज्मा कटर्स और रेट माइंडर समेत 11 एजेंसियां मुसलसल काम कर रही है ताकि महसूर मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकाला जाए। SLBC टनल की गौरव सहचार मंत्री इरिगेशन मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी गारू, నేను నాతో పాటుగా వంశకృష్ణ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, అట్లాగే అరవింద్ కుమార్ అందరూ కూడా మళ్ళొకసారి దీనిపైన ఇక్కడికి వచ్చి సమీక్ష చేసే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. సరే, నిన్న మొన్న పురోగతి అనేది చాలా ఉంది. నాకు తెలిసి బహుశా రేపు రాత్రి వరకే ఒక 4 ఆచూకీ అనేది అయితే రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా సర్వే రాడార్ ద్వారా లొకేట్ చేయడం జరిగింది, అంటే ఫ్రంటేజ్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఆ 4కి సంబంధించి రేపు రాత్రి వరకు మనకు పూర్తిగా అది కంప్లీట్గా బయటికి తీయడం జరుగుతుంది. రెండవది, మిగతా 4 ఆ యొక్క TBM మిషన్ ఫ్రంటేజ్లో ఉన్నారు. సో దానికి సంబంధించి వాళ్ళ అక్కడ 24 అడుగుల మేర బురద మట్టి అట్లాగే ఉన్నది. సో దానికి ఇంకొక రోజు ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు, కొంత సమయం పడుతుంది. అయితే ఈ యొక్క ఆ TBM మిషన్ మొత్తం కట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే సుమారుగా 450 అడుగుల సుమారుగా నిడువైనటువంటి మొత్తం ఆ మిషనే టన్నల్ ఎంత వెడల్పు ఉంటుందో అంత లోపలికి ఉన్నది టోటల్, అంటే అంత లెంత్. సో వాటిని కట్ చేయడం అనేది చాలా వరకు ఆ పాటుకాడికి ఏదైతే కొట్టుకొచ్చిందో ఆ మిషన్ కటింగ్స్ అనేది పెద్ద ఎత్తున పని జరిగింది. ఇట్ సేమ్ టైం ఎక్కడైతే ఆ యొక్క ఆ 4 ఆచూకీ పలానా దగ్గర అంటే ఉన్నట్టుగా గుర్తు జరుగుతుందో అక్కడ సపరేట్గా అక్కడ మాన్యువల్గా మనుషుల ద్వారా కూడా మళ్ళీ తవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కొంత తవ్వడం కూడా జరిగింది. అది బహుశా రేపు మధ్యాహ్నం సాయంకాలం వరకు అది పూర్తయితే మనకు ఒక రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. రెండవది, లోపల ఏదుందో దాన్ని చేయాలన్నప్పుడు దానికి कांग्रेस MLC तीनमार मलना उर्फ चुंतापिंडो नवीन को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। TPCC की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने एंटी पार्टी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में MLC तीनमार मलना की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। MLC मलना की कांग्रेस से मुअत्तली पर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। हमने मलना को कई बार मुतनब्बे किया था। BC जातों की मरदुमशुमारी के दस्तावेजात फाड़ने पर EICC ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। मलना के बयानात सरासर गलत थे। पार्टी लाइन से इन्हिराफ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंज़बाती कार्रवाई लाजमी होगी। EICC की हिदायत पर मलना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। PCC सदर महेश कुमार गौड़ नियमावली पार्टी लाइन लो ప్రతి ఒక్కరు ఉండాల్సిందే, అది అందరికీ వర్తిస్తుంది. ఇంతకన్నా ఘోరంగా కమెంట్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు, బూతులు తిట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా పార్టీలో ఉన్నారు. కానీ తన మీద వై అని ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వము రాహుల్ గాంధీ గారి ఆశయం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నేను ఆ భాష వాడిన ఆయన వాడిన భాష ఆ కాయిదాలను చింపేసి తీరు పట్ల ఏఐసీ చాలా తీవ్రంగా పరిగణించారు. కులము మతము పార్టీ క్రమశిక్షణ ముందు కులము మతము పనిచేయదు. పెద్ద చిన్న తారతమ్యం ఉండదు. పార్టీ లైన్ దాటినప్పుడు ఎంతటి వారిపైన క్రమశిక్షణ ఉంటాయి. మల్లన్న విషయంలో మొదటి నుంచి కూడా చాలా విషయాల్లో ఆయనకి మందలిస్తూ వచ్చినాము. ఇది పద్ధతి మంచిది కాదని చెప్తూ వచ్చినాము. అయినప్పటికీ కూడా
ఆయన ఆ కాగితాన్ని తగిలియడం అనేది చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సి వచ్చింది. वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर असद अल-दीन ओवैसी ने सवाल किया, क्या नफरत की बुनियाद पर विकसित भारत बनाया जाएगा? साथ ही उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद महाराष्ट्र में सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर एक गरीब मुसलमान की दुकान पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? गलती क्या थी? मुसलमान था, तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता? अरे ये दारुसलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और एक गरीब बेचारा कौन देखे, ठहरिए, कौन देखे उसको? वो बोला नहीं बोला, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके नोटिस देकर दुकान तोड़ दिया उसकी, रोजगार से महरूम कर दिए मुसलमान और उस पर केस लगा दिए। यही आप करना चाहते हैं ना, कि जहां मुसलमान दिखा मारो। और यहां पर भी शमशाबाद में भी परसों वो एक बांकड़ा पहलवान फिर रहा, चड्डों में से मोंढे पलट गए तेरे, याद रख, सुधर जा। बेचारे भैंस के 12 भैंस लेके आए, रोक के मारे। वीडियो देखा हूं मैं। क्या हो रहा है? ये कौन है आप मारने वाले? अगर हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर विकसित भारत बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा फिर? और पुलिस पकड़ नहीं रही है उसको। पुलिस बोल भी क्या, नहीं उन्हें मार के भाग गया। ट्रैफिक कांस्टेबल है, एसआई है, उनके सामने मार रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनेगा? नफरत की बुनियाद पर विकसित भारत बनाएंगे आप। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, उनके मजहबी इबादतगाहों को छीनकर, उनके घरों को तोड़कर, हमारी जबानों को गाली देकर, हमारे को कटमुल्ला कहकर विकसित भारत बनाएंगे आप। कोई जाने वाला नहीं है भारत से, यही सब ये रहने वाले हैं। हम मोदी जी को बोलेंगे, तेलंगाना में कर्जे जराइम की शरह और खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। KTR शानुक्करपल्ली में रियल स्टेट का जवाल हो चुका है। जानवाड़ा में मेरी भी जमीन है, कहा जा रहा है कि मेरे लिए रखी गई है, तो फिर वो आकर इसे मुनहदिम करे। తెలంగాణ ఇస్ రైజింగ్, అప్పులలో పెరుగుతుంది, క్రైమ్ రేట్ల పెరుగుతుంది, ఆత్మహత్యల్లో పెరుగుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక్క సంవత్సర కాలంలో ఈ 450 రోజులలో 450 మంది రైతులు రోజుకొక్కరు చొప్పున చచ్చిపోయింది. ఇప్పటికి ఆత్మహత్య ఒక గన్ల పెరుగుతుంది. ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్, నేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్, గురుకుల పాఠశాలల్లో పిల్లల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్. ఎస్, తెలంగాణ ఇస్ రైజింగ్. ఎలా రైజింగ్? ఆత్మహత్యల్లో, అప్పుల్లో, క్రైమ్ రేట్లో, ఇండ్ల మాత్రం రైజింగ్ అయింది. ఒకదానిలో మాత్రం డౌన్ అయింది. మీ శంకరపల్లి కొంప ఉచ్చుకున్నాడు, మొత్తం భూముల రేట్లు డౌన్ అయిందా కాదా? నేను చెప్పేది వాస్తవం కాదా? నాకు కూడా కొద్దిగా భూమి ఉన్నది జన్వాడలో. ఇక దానికి ఇక భూ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదట భూమి, జన్వాడలో నాకే ఉందట భూమి. దాని ఎంబడబడ్డాడు. సరే పడితే వాడు కూలగొట్టరా పోయి ఊకెళ్ళి వెళ్ళింది. హైడ్రా పెట్టిందే నా కోసం అట. హైడ్రా పెట్టి కూలగొడుతుందికే పెట్టిండట. కూలగొట్టుకోరా పోయి ఊకెళ్ళి వెళ్ళిందని చెప్పిన. ఏం చేయాలి ఇక మరి గట్లా తయారైంది కథ. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే వెనకటికి ఎవడో ముఖం బాగాలేక అద్దం బాల కొట్టుకున్నాడు. BRSMLA जगदीश रेड्डी खुश्क खेतों को देखकर आपदीदा हो गए और कांग्रेस हुकूमत से किसानों के लिए पानी छोड़ने की दरखास्त की। ప్రభుత్వం వెంటనే నీళ్ళ రైతులకు, ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రభుత్వం రైతులకు వెంటనే ఎండిపోయిన పొలాలను ఆదుకోవాలి. ప్రభుత్వం వెంటనే ఎండిపోయిన పొలాలను తక్షణమే రైతులకు న్యాయం చేయాలి. తక్షణమే రైతులకు నేను దండం పెట్టి అడుగుతున్నా, నీళ్ళు ఎండి రైతులు కాపాడండి. దుర్మార్గం ఇది. ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రభుత్వం ఉండడం అనేది పద్ధతి కాదు. వాస్తవానికి అద్భుతంగా పంటలు పండించిన ప్రాంతం ఇది. వద్దన దాకా నీళ్ళు ఇచ్చినాం గతంలో. ఒక రైతుగా ఇది చూస్తే బాధ కలుగుతుంది. దయచేసి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా,
దండబెట్టి అడుగుతున్నా, నీళ్ళు వదలండి, రైతులను బతికించండి అని. రైతు బిడ్డ జగదీశ్ అన్న గారు. हैदराबाद बीजेपी तेलंगाना के हैदराबाद के हल्के गोश महल से नुमाइंदगी करने वाले मलूत रुकन असेंबली राजा सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उकसाने वाली नफरत अंगेज तकारीर के केसेस जुमा के रोज MP-MLA कोर्ट ने खारिज कर दिए। हैदराबाद शहर के तकरीबन 5 पुलिस स्टेशनों में मलून राजा सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और ट्रैफिक में खलल अंदाजी के केसेस दर्ज किए थे। इन केसेस पर कल जुमा MP-MLA कोर्ट में समाअत की गई और अदालत ने दोबारा ऐसा न होने की तंबीह करते हुए उन केसेस को खारिज कर दिया। डिप्टी CM पवन कल्याण के काफिले की टुकर से शख्स जख्मी। वाकया तादीपली में DGP ऑफिस के करीब पेश आया। पवन कल्याण के अमले ने जख्मी शख्स को NRI अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी की शनाख्त राधारंगा नगर के रिहायशी के तौर पर हुई। ब्रेकिंग न्यूज। वरंगल मामूनोर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में तसादुम। एयरपोर्ट के क्रेडिट का दावा करते हुए बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झगड़ा। बीजेपी कारकुनान मोदी के इस्तकबाल के लिए मामूनोर एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस कारकुनों का दावा, एयरपोर्ट कांग्रेस हुकूमत की बदौलत तैयार हो रहा है। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल। पुलिस ने मुदाखलत करके हालात काबू में की। वरंगल में डॉक्टर सिमनित रेड्डी को इसकी बीवी फ्लोरा मरियम ने अपने आशिक समूएल के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। नाजायज ताल्लुकात के 22 झगड़ों के बाद फ्लोरा ने शौहर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और कातिलाना हमला करवाया। हमले में शदीद जख्मी डॉक्टर अस्पताल में दौरान इलाज चल बसे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से फ्लोरा, समूएल और एक कांस्टेबल राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। नारायणपेट तेलंगाना के शहर में वाक़ हुकूमत के बच्चों के अस्पताल में चूहों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त की शिकायत मंजर आम पर आई है। बताया जा रहा है कि चूहे मरीजों के बेड्स के अर्द गिर्द आज़ादाना घूमते हैं, जिसकी वजह से मरीजों और उनके अहल खाना में खौफ व हरास की फिजा पैदा हो गई है। चूहों की मौजूदगी की वजह से खास तौर पर बच्चों के इलाज में मुश्किलात पैदा हो रही है, जिससे सेहत के निज़ाम पर सवालात उठ रहे। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में हिट एंड रन केस, एक शख्स हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। हैदराबाद के नारसिंगी के विटनागोलपली एओर सर्विस रोड पर एक नामालूम व्हीकल ने तेज रफ्तारी से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त गणेश के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और जाए हादसा के अतराफ में लगे CCTV कैमरों की मदद से मफरूर गाड़ी और ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार। कामारेड्डी जिला में गैर कानूनी रेत और मिट्टी की तेजी से नकलो हमल। माचारडी, रामाडी और सुधीशु नगर मंडल में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत और मिट्टी की तरसील जारी। रामाडी मंडल के रेडीपेट, मिटकंटा के जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर रेत के डंप नालों से गैर कानूनी रेत निकाल कर जखीरा करने वाली माफिया सरगर्म। पुलिस और MRO की सरपरस्ती में रेत की गैर कानूनी तिजारत जारी। फॉरेस्ट और माइनिंग हुक्काम की लापरवाही पर अवाम में बिरहा।
डी शो के डांसर ने धोखा दिया, सेल्फी वीडियो बनाकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। वाकया खम रूरल पवनिकला में पेश आया। काफिया कल्याणी ने खुदकुशी से पहले इल्जाम लगाया कि डी शो डांसर अभी मेरी मौत का जिम्मेदार है। अभी ने शादी कर के साथ रहने के बावजूद दूसरी शादी करने का फैसला किया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर काफिया कल्याणी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले ली। నేను చచ్చిపోతున్నాను. నా చావుకు కారణం అభి. 5 సంవత్సరాల నుంచి నన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు నన్ను వదిలేసి ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్తున్నాడు. నన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు నేను ఉరేసుకోబోతున్నా. నా చావుకు కారణం అభి. मनीकोंडा में खौफनाक हादसा, आग में झुलसकर 3 अफराद जा बहक। मनीकोंडा म्यूनिसिपैलिटी की हुदूद में वाक़े पाशा कॉलोनी की एक इमारत में मौजूद किराना दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त सिजीरा खातून 7 साल, जमीला खातून 70 साल और सहना खातून 40 साल की हैसियत से की गई है। आग पर काबू पाने के दौरान फायर ब्रिगेड के अमले ने 5 अफराद को बहिफाजत बचा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 3 गैस सिलेंडर फटे हैं। हुक्काम वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोयिनपल्ली इलाके में एक बड़ा दरख्त अचानक सड़क पर गिर गया। यह हादसा पाराने कल्याणी थिएटर के करीब पेश आया, जिससे मकामी अफराद और गाड़ियों के मालिका में खौफ व हरास फैल गया। इस वाक़ये के वक्त खुशकिस्मती से सड़क पर कोई गाड़ियां या पैदल चलने वाले अफराद मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान से बचा जा सका। दरख्त की गिरावट से सड़क ब्लॉक हो गई थी, जिससे आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना। पुलिस की इब्तदाई जांच में यह मामला गैंग वार से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। हालांकि पुलिस सभी मुमकिना पहलुओं की जांच कर रही है।
जाए हादसा के करीब सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अमला सिटी कोर्ट इहाता में हफ्ता की सुबह 11 बजे फायरिंग के वाकया से हंगामा मच गया। अदालती इहाता के गेट के पास हुए इस वाकया के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जाता है कि सियारन की एक स्कॉर्पियो गाड़ी इहाते में आई, जिसमें 2 से 3 नौजवान थे। फिर हुआ में 2 गोलियां चलाएं और सभी मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। डीएसपी हेडक्वार्टर समेत पुलिस दस्ता मौके पर पहुंचा और गोली मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस को जाए वाकया पर से 3 कारतूस के खोल मिले हैं। इब्तिदाई और 2 गोलियां जो है यहाँ चली है। कितनी बार खींच लिया आपने? वही रहेगी, ये चिंता ना करो। इधर से आ जाओ सरदार जी। हाँ जी श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट 13 फरवरी से हैक है। मद्दाहों को जाली पैगामात और लिंक से खबरदार किया। वो वजीर आजम मोदी की मोटा पे मुखालिफ मुहिम की हिमायत पर भी खबरों में रहे। मशहूर गुलकारा श्रेया घोषाल ने इंकिशाफ किया है कि उनका एक्स अकाउंट 13 फरवरी से हैक हो गया है। उन्होंने मद्दाहों को मुतनब्बे किया है कि इस अकाउंट से की गई किसी भी पोस्ट, पैगाम या लिंक पर तवज्जो न दे, क्योंकि ये सब जाली और धोखाधड़ी पर मबनी हो सकते हैं। श्रेया ने हफ्ते के रोज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद अपना अकाउंट वापस हासिल करने में नाकाम रही है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, तमाम मद्दाहों और दोस्तों को सलाम। मेरा एक्स अकाउंट 13 फरवरी से हैक हो गया है। मैंने एक्स टीम से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सिर्फ खुदकार जवाबात ही मौसूल हुए और कोई मदद नहीं मिली। अब मैं ना तो अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकती हूँ और ना ही इसे हज़्फ कर सकती हूँ। बरा करम इस अकाउंट से आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी पैगाम पर यकीन करें। अगर मेरा अकाउंट बहाल हो गया तो मैं खुद वीडियो के जरिए इत्तला। पवन कल्याण और वजीर आला के दफ्तर के चक्कर लगाए मगर इंसाफ न मिला। खातून और बेटी की खुदकुशी की कोशिश। विजयवाड़ा के वाम्बे कॉलोनी में एक खातून ने अपनी बेटी के साथ खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। खातून ने इल्जाम लगाया कि इसके शौहर शिवा नागराजू, विक्रांत पब्लिशर्स के चेयरमैन चक्रवर्ती, ससुराली अफराद दुर्गा, वेंकटेश्वरा राव और देवर शिवा कृष्णा मुसलसल से और उसके बच्चों को हरासा कर रहे हैं। खातून ने कहा कि पवन कल्याण के दफ्तर और वजीर आला के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन इंसाफ न मिलने की वजह से मजबूर होकर खुदकुशी की कोशिश। నా పేరు సుభాష్ని అండి, నా కూతురు పేరు హాసిని లక్ష్మి. జన్సన్ ఆఫీస్ చుట్టూ, సీఎం గారు ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి 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 అలసిపోయాం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో న్యాయం చేస్తారని ఆయన చుట్టూ తిరిగాం, కానీ ఏ న్యాయమూ జరగలేదు. ఈరోజు నా బిడ్డ చావడానికి పాయిజన్ తీసుకుంది. నా బిడ్డలతో పాటు నేను చచ్చిపోతా. మాకు ఎవ్వరు ఏ న్యాయం చేయరు. నా భర్త ముందు ఫస్ట్ వ్యక్తి విక్రాంత్ పబ్లిషర్స్ చైర్మన్ చక్రవర్తి, సెకండ్ నా భర్త శివనాగరాజు, నా అత్తమామలు దుర్గా, వెంకటేశ్వరరావు, నా మరిది శివకృష్ణ. ఈ 5గురు మమ్మల్ని మామూలుగా హెరాస్ చేయలేదు. మనీ కోసం అదనంగా నాకు 10 లక్షలు కట్నం తెస్తేనే నాతో ఉంటానని ఈ రోజు కూడా నా పిల్లల్ని బెదిరించాడంట నా భర్త. అత్తమామలు వీళ్ళ ముగ్గురు, శివకృష్ణ కూడా బెదిరించాడు. అందుకే ఆ పిల్ల ఏం చెయ్యలేక వాళ్ళ నాన్న రాడే ఉన్న బాధతో ఆ పిల్ల చావాలనుకుంది. వాళ్ళు నేను చూడకుండా ఆ పిల్ల ఆలోడి పాయిజన్ తీసేసుకుంది. ఈరోజు ఇప్పుడు నేను అతని ఇంటి ముందుకెళ్ళి నేనే చేస్తా.
అతని ఇంటి ముందుకెళ్ళి మరీ చచ్చిపోతున్నాం. మా చావుకి ఆ 5గురు కారణం. విక్రాంత్ పబ్లిషర్స్ చైర్మన్ చక్రవర్తి, శివనాగరాజు, దుర్గా, వెంకటేశ్వరరావు, శివకృష్ణ, ఈ 5గురే. ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ పెట్టినా డబ్బులు తీసుకుని పోలీసులు వాళ్ళని వదిలేశారు. ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామేశ్వరరావు గారి దగ్గర పెట్టినా నా సమస్య తీర్చలేకపోయారు. అందుకే ఇంకా మాకు ఎవ్వరు ఏమీ చేయరు, మేమే చేస్తున్నాం సార్. దయచేసి మా చావుల కన్నా న్యాయం చేసి మా ఆత్మల కన్నా శాంతి చేకూర్చండి. మీకు దండం పెడతాం. మాలా ఇంకో ఆడపిల్ల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు. మీరు రాజకీయ నాయకులు అసలు ఆడుకోవద్దు. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ने रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद और वरंगल तमाम जिले तालीमी अफसरान, देओस और रियासत के डाइट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मतला किया है कि रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने के दौरान स्कूलों के औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तब्दील किए जाए। ये नया शेड्यूल 2 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक दोनों दिन शामिल नाफिज होगा। तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों, मुतवाजी मीडियम स्कूलों के उर्दू सेक्शंस और डाइट कॉलेजेस के उर्दू सेक्शंस में उन औकात पर अमल दरामद करने की हिदायत दी गई है। मजीद हिदायत दी गई है कि तमाम मुताल्लिका स्कूल हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स इस तब्दीली के बाइस होने वाले तदरीसी औकात के नुकसान को पूरा करने के लिए इजाफी काम करें। अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स एक इजाफी दिन काम करेंगे, जबकि प्राइमरी स्कूल्स के लिए 2 काम के दिनों में रोजाना आधा घंटा इजाफी पढ़ाने की हिदायत दी गई है, जैसा कि गुज़िश्ता साल किया गया था। ये फैसला डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना हैदराबाद की मंजूरी से लिया गया। रियासत में जारी यूरिया की किल्लत ने किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गोलेलापली मंडल हेडक्वार्टर में किसान लंबी कतारों में खड़े होकर पास बाकिस और आधार कार्ड रखकर इंतजार करने पर मजबूर हो गए। यूरिया की कमी के बाइस सिर्फ चंद किसानों को ही यूरिया के थैले तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि बाकी किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूरिया की किल्लत को दूर किया जाए ताकि ज़राअत पर मनफी असरात न पड़े। कांग्रेस ने इंतजामिया से अपील की है कि फंसे हुए लोगों को जल्द अज जल्द हिफाजत के साथ बाहर निकाला जाए और उनके पास राहता अशिया पहुंचाई जाए। उत्तराखंड के चंबली में 28 फरवरी को हिंचै सरहदी इलाका में माना कैंप के पास ग्लेशियर फटने का वाकया पेश आया था, जिसमें 55 मजदूर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 57 मजदूरों बताए जा रहे हैं, फंस गए थे। बर्फ में दबे इन मजदूरों की तलाश का सिलसिला 1 मार्च को भी जारी है। 46 मजदूरों को बाहिफाजत बर्फ से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं, जबकि 4 मजदूरों की मौत हो गई है। मजीद 5 फंसे मजदूरों की तलाशी में रेस्क्यू मुहिम जारी है। इस दरमियान कांग्रेस ने महलूकीन के अहलखाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तज़ियती पैगाम पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के चंबली में ग्लेशियर टूटने से हुई जबरदस्त तबाही में कई लोगों की मौत की खबर बेहद तकलीफदेह है। इस तकलीफ के वक्त में ईश्वर गमज़दा कुंभों को हिम्मत दे और जख्मियों को जल्द सेहत याबी अता करे। कांग्रेस फैमिली की हमदर्दियां मुतासिरा कुंभों के साथ।